All right. So here we are today on module 5 and 6. And based on what we have learned so far, let's go and see where are we now on this scale of 0 to 5. Are you able to conquer your emotions? Are you there? So here, I wanted you to actually ask yourself, now, what is your thought, Priya? Hi, Vikas, how are you? You're right on time. We're just starting with the module Hi. 5 and 6. So this is almost the last module. I will be sharing after this also some more cheat sheets about how to improve your connection. जैसे मैं एक एक चीज discover करी create करी, I'll keep sharing with you all. But officially this is the last thing because this is the module 6 which we are talking about positive reinforcement. So before we start, I wanted to understand the last time whatever we learned. Do you all feel your connection with your child has improved? And if yes, what is the way they have improved? So I'm going to put a maturity framework on the screen. So would you like to share like where you are, where you were before and now where you are in terms of conscious communication, Priya, Vikas? I would say between 1 and 2, uh, because at least I'm more aware now, and now there are initial engagements. A lot of times where I used to scream whenever I would see my son on laptop playing games. At least I don't do that now because I understand that he needs that time for himself, and I don't need to break my bond with him for him wasting few months of his life, and then I am not having him for the rest of my life. So let him waste his time. Very And insightful. then That was great. True. yeah, I mean, you don't mind spending pennies for dollars, right? So, so that is what you have taught us. Active involvement, I would say it is there, but not that much because mutual respect is there, trust is there. So I don't know how to kind of level it is between 1, 2, and 3 kind of. Yeah. So first, let me ask you, before joining this teenage parenting session, where were you? Were you at level 1, 0 in case of conscious communication? In case of some conscious communication, I would say probably a 0. And now you're able to at least come between 1 and 2 because you're aware. And if you continue this practice, we can take it to proficiency and mastery, but you have to keep on practicing. We were just revising the module 3 and 4 before you came with Priya, so that you can just revise our thing and she can remember that. Now, connection or bond. In that case, are you saying because that now you are, so awareness is there, correct? Initial engagement भी Hmm. start हो चुका है. Is also there. Hmm. हाँ. Active involvement and mutual respect. So active involvement is basically when your child is doing something. Now you're actively involved mentally. I'm not talking about physical. Mentally, you're Hmm. involved about it. That's it. Okay. So if your child comes and shares a story, generally about his friends or colleagues, earlier you just like, okay, हाँ तो ये बोलने दे, चलो मैं सुनता हूँ. This is what you're doing. But Hmm. now you have to be actively involved. अच्छा, oh, हाँ सार्थक, अच्छा और क्या हुआ? And you are actually making genuine effort to understand the story. That's called active Like involvement. same one thing that happened today was when he came back from school. After that, he was like started playing game on his laptop, and I asked him like, why are you wasting your time on this game? Papa, you don't know that this game is different. It was not there in your childhood and all of that. Come, let me show it to you. So had it been the previous times, I would say no, I don't want to even have a look at it. But now I said, okay, show me what it is. And I just sat around for 10 minutes and he kept on playing. But inside my heart, I knew that it is again waste of time. I did not like those fighting games and, gun games wherein you are just hunting around, looking around and trying to shoot someone, right? What logic is it? You today just sit with him and you saw, but it's not the end of it because second time also you try to sit with him and say, oh, what are you doing? Okay, that you were able to score this. Then third time, when he is in a mode of saying, okay, now Dada is my friend is sitting with me, that time try correcting him. That time say, Hmm. बेटा ये सब आप कर रहे हो उससे आपको मिलता क्या है? आपका कुछ स्किल या नॉलेज कुछ बढ़ रहा है क्या? मैं भी खेलना चाहता हूँ लेकिन मुझे Hmm. समझ नहीं आ रहा था इनके लिए से कुछ फायदा है तो मैं भी खेलूंगा. क्या लगता है आपको? Hmm. Probe him the question. He will come up with answer. And then say, यार मैंने कहीं तो पढ़ा था कि ये फास्ट मूविंग गेम्स पढ़ने से ना there is no skill involved but your brain का फालतू में brain waves increase हो रहे हैं जो concentration में impact करते हैं. That's a true fact.
If a child is playing those fast games, no, जहाँ पर brain work नहीं है, इधर उधर shoot मारो, fight मारो, भागो, इसमें this is all creating vibration in your brains, and this will actually impact them to focus on their studies. Concentration कम हो जाता है बच्चों का. इसके जगह पे बहुत सारे interesting games हैं मोबाइल में, which they can play and still enjoy, but they still at the same time not have this impact. तो पहले उनके साथ बैठो और एंजॉय करो वो गेम, धीरे उनसे उनको चेंज करो, वरना वो चेंज नहीं होंगे. What about you, Priya? What do you feel on your case? Where were you and now where you are? You're on mute, Priya. In conscious communication, my level was zero actually initially, but what I feel now, I'm at the level two. Very good. Very Yeah, good. we have started, like, we are communicating with each other. I try, whenever he comes and talk to me about whenever he wants to discuss something about his friends or anything school or any other issues, so I actively involved. I I listen to him. I give some, time for him. That's great. That's great. And what about connection and And bond? in connection and bond, I think I was at level zero. I was just aware of having connection and bond, but now I think uh, I'm at level two, active involvement. And as I said, today we discussed certain things. If you continue doing that, no, empower your child when you're going out. I was just telling Vikas to Priya that when you're going out to a shopping place, है ना, food court में गए, food court में जाके खाना order करना है. Just send your child, give him 200 rupees or 300 rupees. Say, बेटा तुम जाके खाना order करो, आज हम आपके choice का खाएंगे. Let him do that. You're empowering him. You're giving him respect. फिर he's like, okay, मैं कुछ करने वाला. और अगर खाना लेकर आएगा, तो उसमें गलतियां मत निकालो. फर्स्ट टाइम अप्रिशिएट करो, अरे वाह, कमाल कर दिया तूने, तो 500 रुपीज में तूने सबके लिए खाना भी ऑर्डर कर दिया, तो मैं भी नहीं कर सकता, वेरी गुड. And then first, second time you appreciate, so they get encouraged. The third time, maybe you can give slight feedback. अरे यार ये थोड़ा सा तीखा होना चाहिए था, पर मम्मा को तीखा करी पसंद है ना, आपको तो पता है, यार पापा को तो पता है ना आपको बिरयानी पसंद है. So that way you start empowering them and giving them a mutual respect and trust. So I'm just giving you an idea how to give mutual respect and trust by making them feel like adults. Okay, so this is how we move into that. All right. Now, what we will do is, let me talk about the framework which we had disciplined. Yeah. So we had 6-step framework. Awareness और mindset को मैंने एक मॉड्यूल में किया था, if you remember. Okay. अभी लास्ट मॉड्यूल जो मैंने किया था उसमें कॉन्शियस कम्युनिकेशन वाला पार्ट था मेजर. And using that conscious communication, we had to set connection here. Okay, but I'm going to give you some more cheat sheets and how to talk to your teenage at different situations. So that, because मुझे ऐसा लग रहा है मैंने explain तो किया आप लोगों को conscious communication, लेकिन काफी parents अभी भी confused है कि कहाँ पर कैसे use करना है. So the way I said now, these things, I'm going to give you all, 5-6 exercises every challenge. Make it try this, try this. So when you try this, as a part of the challenge, you will start completing all these exercises slowly, slowly. पहले तो ज्ञान दिया, बट उसको जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे ना प्रिया, कुछ फायदा नहीं. तो वो challenges जो मैं डाल रही हूँ हर वीक, आई एम कॉन्शियसली प्लानिंग those challenges so that if you'll do even 2 or 3 things out of it, now still your parenting journey is moving ahead. It is not important that you become perfect in 4 months, but it's important to take at least baby steps towards being a perfect parent. Okay, as you are being a better and better parent. Now, ये इमोशनल लव जो है, इस पर्टिकुलर चीज का मैंने टच ज्यादा क्यों नहीं किया, बिकॉज इमोशनल लव का आई वांटेड, आई कैन टेक अ सेशन, मैं वो रिकॉर्ड करके मैंने रखा हुआ है, बट आई वांटेड यू ऑल टू एक्सपीरियंस इट. जो मैं ये लव लैंग्वेज हर हफ्ते जो शेयर कर रही हूँ ना, दैट इज नथिंग बट इमोशनल. इमोशनल लव में देयर आर 5 टाइप्स ऑफ लव लैंग्वेज, एंड एक बार ऑलरेडी आप लोगों ने चैलेंज में कर दिया है. वन इज स्लिप फिजिकल, देन थ्रू वर्ड्स, नाउ आई एम डूइंग अ गिफ्ट. ये सब इमोशनल लव का ही मॉड्यूल का पार्ट है, जो मैं आप लोग को चैलेंजेस के थ्रू करवा रही हूँ, क्योंकि मैं सेशन ले लूंगी तो कोई करेगा नहीं. फिर मैंने बोला चलो इसी थ्रू, और फिर जब ये सारा चैलेंज खत्म हो जाएगा, तब मैं इमोशनल लव का मॉड्यूल आप लोगों को रिकॉर्डिंग में दे सकती हूँ कि ये देखो छोटा छोटा स्निपेट, अभी इसको सुनो समझो और करते जाओ. so that way awareness, mindset change, conscious, emotional love and connection, ये टच हुआ. अब आज हमारा पॉजिटिव reinforcement है, जो मेजरली आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट. ऑलराइट, so this is the 6th step we are going to talk about today. And here I'll be teaching you, there are 5 principles around
positive reinforcement, because this will start helping you to make changes and seeing results in your parenting. The biggest challenge which all parents come to me is discipline नहीं है मेरे बच्चे का behavior मुझे change करना है, मैं कैसे change करूं? तो आज I'm going to teach you some real interesting secrets. अगर आप ये follow करोगे तो बहुत easily आप अपने बच्चे को discipline कर सकते हैं. Okay, so let's go into that. विकास चला गया क्या? विकास, are you there? Yes, We are he's going to there. talk about. He's there. Okay, okay. He's there. Huh. I'm So there listening. I'm on the airport. It's just that चलेगा. Continue, it is continue. Avika's birthday today. It is Avika's birthday today, so we need to plan Okay. what need to get we need to bring at home. Okay, you can roam around. No, I'm absolutely fine as long as you're No, listening and perfectly not. fine. I am listening. I'm listening. So I've made it very very short and crisp because मुझे बहुत ज्ञान एक ही सेशन में नहीं देना. मैंने लास्ट टाइम कॉन्शियस कम्युनिकेशन में देखा, बहुत ज्ञान दे दिया, सबके चेहरे तीसरे स्लाइड पे ऐसे कंफ्यूज हो गए. तो मैंने बोला इस बार I will give it in small morsels, and I have another more data also, but I'll give it in small snippets like that. What is discipline? डिसिप्लिन के बारे में आपकी राय क्या है, पहले ये बताइए, फिर हम आगे बात. व्हाट इज डिसिप्लिन? The way we have learned it in our childhood is that, agree to what the elders are saying or the teachers are saying or the institutions are telling you. But is that really the discipline that the child want to understand? That is something which I learned or which believe we have to create discipline is different for everyone. For someone, playing for a few hours could be his discipline. Right? If you are a cricketer, your discipline is that you're playing at least for 4 hours. But if you are not a cricketer, if you are a student, or if you are a study enthusiast, then studying more would be your discipline. So discipline changes as per the interest of people. What about you, Priya? Let's hear both the sides. And I think it's a good intake. We are about to reach there. Just sit there with us. Priya, आपके कुछ thoughts, विचार? Yeah, what I feel that discipline is, doing the things on time at right time. I know, you have to, you are just regulating your schedule. Means, what time you get up. You have to get up early in the morning, sleep early at night. Eating food on time. Whatever if you have any study time, so you have to finish your homework daily, regularly. Got it. And So, that's what I feel the discipline is. so both of you are almost touching that thing. So what Vikas said is, if there is anything around what is important or relevant for your life and your stage of life, that around that anything is discipline. And Priya is saying that anything where you set, rules, like, you have to get up at this time or that time, that is the discipline. And both are correct, because for a child, discipline is any rules around the behavior which they are doing in their day-to-day routine. If you put those rules and if they abide by that, that is discipline. But now, 3 elements of discipline is very important. When you are doing disciplining of a teenager as a parent, first important thing is you have to have a disciplined discussion with them, open communication with them. Many times parents fail that. Okay. And what is that open communication? It is about setting the clear expectations. Many of the time our expectation are roundabout the what. What we say, ज़्यादा खेलना नहीं चाहिए, ज़्यादा खेलना नहीं चाहिए. अरे लेकिन ज़्यादा का meaning तो define करो. What is the definition of ज़्यादा? Is it 1 hour? Is it 2 hours or 3 hours as well? Then the third thing which is important is discipline is, आज आपने उसको 2 घंटे खेलने दिया, कल आपने 3 घंटे खेलने दिया, तो ये consistency नहीं है. So discipline requires 3 things. One is you should have setting clear expectations. Is my slide visible or is it over? I'll put it this way. Yes. It's clear, no? Okay. Setting clear expectations, consistent consequences, and open communication. So you should be able to tell the child when you go to bed, it is important you go to bed by 10:30 every day. On Monday to Friday compulsory hai. Saturday, Sunday, we can give you certain leave. That is setting clear expectations. If he doesn't go at 10:30, then what happens? ये तो आपने बताया नहीं. आपने सिर्फ ये बोला, you have to sleep at 10:30.
You have to complete the discipline by setting consequences. If you don't sleep at 10:30 and if you stay awake on your mobile or anything till 11 or 11:30, then tomorrow when you get the tiffin, I'm going to give you not chicken, but I'll give you chapati and bhaji. Kuch bhi. Some consequences you have to define. And you have to make sure you are making that consequence happen. ऐसा नहीं कि आज रात को आपने रूल सेट किया और कल से जाने दो, मेरा बेचारा बेटा कितना मेहनत करता, चलो मैं चिकन दे देती। नहीं, कम्युनिकेशन किया है, रूल बना है, तो फॉलो भी करना है consequences. Consequences is not punishment, but basically you are trying to chinify some happiness. You're not giving him a hit. But अगर उसको चॉकलेट देने वाले तो 2 चॉकलेट को आपने रोक दिया, उसको बोलते हैं consequence. Many parents misunderstand ये consequence का मतलब ये है कि बच्चे को कुछ भी पनिश करो। नहीं, बच्चे को पनिश नहीं करना है। जो उसका एक खुशी था या फेवरेबल कंडीशन था, उसको उससे डिप्राइव करो, वो भी उसके लिए कॉन्सिक्वेंस हो गया। उससे उसको हार्म नहीं हो रहा है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं फिर यार कुछ तो कमी रह गई, काश मैं कल रात को 10:30 बजे सो गया था। सो सेटिंग क्लियर एक्सपेक्टेशंस, कंसिस्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस। और ये चीज को आप कॉन्सिक्वेंस का मतलब ये है कि आज आपने उसको बोला कि कल देखो तुम्हें टिफिन में मैं करेले का भाजी और चपाती मिलेगा, क्योंकि कल तुम 11 साढ़े 11 तक जागे थे। एक बार हो गया, दूसरी बार करेगा, दूसरी बार करेंगे, तीसरी बार अगर उसने रिपीट किया तो समझ जाना करेले की भाजी उसको आराम से हजम हो रही। अब आपको कॉन्सिक्वेंस को चेंज करना पड़े, बिकॉज ही इज नॉट हैविंग एनी इम्पैक्ट ऑफ दैट कॉन्सिक्वेंस, राइट। तो कॉन्सिक्वेंस को फिर थोड़ा टफर कॉन्सिक्वेंस करना पड़े, ताकि उसको कुछ और ऐसा चीज जो उसकी खुशी वाली चीज है उसको आपको बंद करनी पड़ेगी। शाम को तो खेलने नहीं जा सकता है 2 दिन के लिए, बिकॉज तू 11:30 12 को सोया था, मोबाइल पे बैठा। So this is the kind of consequence you have to prepare. And again, you're not hitting him, you're not shouting at him, but you're just telling, आपका खेलने वाला 2 घंटा हमें बंद करना पड़ेगा, because आपने ये फॉलो नहीं किया। ठीक है। और फिर इस चीज के बारे में खुल के बात भी करना है। काफी पेरेंट्स बात ही नहीं करते कि दिमाग में हाँ मैं ये करने वाला, बताते नहीं। अरे बताओ, आप अगर ये चीज को बताओगे और क्लियरली सेट करोगे तो आई एम श्योर बच्चे को भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बट सी, टीनेजर क्या है? टीनेजर इज एन adult minded child. They want you to treat you like adults and you are doing that. You're saying बैठो यहाँ, मुझे डिस्कस करना है और मुझे अच्छी तरह से इंश्योर करना है कि ये रूल सेट है, हम दोनों के बीच में अग्रीमेंट है, सेट डन। वी आर एडल्ट, वी आर मैन टू मैन टॉकिंग चल रहा है, ऑल सेट। अगले दिन जब आप उसको ये कॉन्सिक्वेंस दोगे, उसको बुरा नहीं लगेगा, उसको लगेगा हाँ यार ये तो मेरी गलती है, मैंने तो अग्री किया था मम्मा के साथ, तो मम्मा को अभी दोष नहीं दे सकते। माई मॉम डैड इज नॉट स्ट्रिक्ट, दे मेड एन एग्रीमेंट विद मी, मैंने एग्रीमेंट तोड़ दिया। इट इज अ मैच्योर डिस्कशन। इस टाइप की चीजें करने से क्या होता है, योर चाइल्ड विल नॉट रिबेल अगेंस्ट यू। कुछ घर में पेरेंट्स आके बोलते हैं मैम बट हम रूल्स कैसे सेट करें, आ चाइल्ड विल रिबेल, वो लोग हमसे दूर चले जाएंगे। बट अगर आप अच्छी तरह से सेट करो ना इस तरह, तो वो दूर नहीं जाएंगे, वो आपको रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि आपने मैच्योर्ड वे से उसके साथ डिस्कशन की। ऑलराइट। एंड देन देयर इज सम क्वेश्चन व्हिच कम्स इन पेरेंट्स हेड, डू चिल्ड्रन और डू टीनेजर्स वांट रूल्स? आंसर इज yes. You know why? Teenagers are adults. They know they can't take decisions on their own and they need help. But वो बताएंगे नहीं क्योंकि उनका ego बहुत बड़ा है. The moment you set rules for them, it is easy for them. Trust me when you tell your child, बेटा आप ना 10:30 तक सो जाओ। पापा 10:30 थोड़ा जल्दी हो गया, ठीक है, मैक्स टू मैक्स 10:45 से लेट मत कर। So the moment he get that rule, no, he is happy कि चलो मुझे पता है मैं 10:45 सोऊंगा तो हेल्दी रहूंगा, मेरे पापा ने बताया तो चलो इसको अभी मुझे अवॉइड करना है। तो हिज लाइफ बिकम सॉर्टेड। लेकिन जब आप आपको टाइम नहीं बताते तो उसको ऐसा लगता है 10:30 बजे सो, 10 बजे सो, 11 बजे, सही क्या है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है। So when you set rules, you're actually helping your teenager to learn and live life more in a disciplined way. And that's what he also wants. No child wants to be undisciplined. Once in a while, he would want to do a night out, but not every time. So they like rules, but you have to set the rules the right way. If you have a dream, यार उसको तो सोना चाहिए था 10 10:30, क्या कर रहा है वो अभी तक, तो जाग रहा हुआ बेबी, तो ही इज कंफ्यूज, पापा ऐसे क्यों बोले 10:30 इतना लेट क्यों नहीं? बिकॉज उसने कभी रूल सुना ही नहीं 10:30 बजे का, पहली बार सुन रहा है वो पापा के मुंह से। So that's why having this open communication is important. Clear? Any questions? So basically, No. rules are one way to let your teens know you care. And many teens, they admit that, when their parents are strict, it's for their own good. All children know that.
अगर पेरेंट्स बिल्कुल नहीं बॉदर करेंगे तो वरी रह गया, मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में बॉदर नहीं। सो द राइट टेक्निक ऑफ सेटिंग रूल्स इज नथिंग बट इट इज द की टू डिसिप्लिन। अगर सही तरीके से आपने रूल सेट किया ना तो बच्चा कभी भी डिसिप्लिन रहेगा। ओके, अभी मैं आपको 5 प्रिंसिपल्स पहले सिखाती हूँ कि रूल सेट करने के 5 प्रिंसिपल्स क्या है। फर्स्ट प्रिंसिपल इज पेशेंस। काफी पेरेंट्स जो है उनको लगता है कि आज मैंने रूल सेट कर दिया और कल से मेरा बच्चा फॉलो करे। ऐसा नहीं होता है। पहली बार वो जानबूझ के थोड़ा ब्रेक करके देखेगा कि क्या होता है, कॉन्सिक्वेंस होता है कि नहीं, क्योंकि वो भी ट्राई करे। मेरी मम्मी ऐसे मजाक में रूल सेट करके गई, सचमुच नहीं होने वाली, देख लेंगे। तो दे आर ऑल्सो ट्राइंग यू। एक बार कॉन्सिक्वेंस दे दिया ना, फिर बोलेगा, अरे यार अब तो करना ही पड़ेगा। सो दे विल ट्राई यू, यू हैव टू बी पेशेंट। एक बार उन्होंने गलती की, दूसरी बार गलती की, घबराओ मत, कंटिन्यू टू कीप द कॉन्सिक्वेंस। क्लियर? फर्स्ट इज पेशेंस। सेकेंड इज पर्पस। नाउ देर आर सम, I wouldn't say all parents, but there are some saddest parents who are like, करने दो उसको गलती, फिर देखना मैं उसको कैसे फटके देता हूँ। मतलब दे जस्ट वेटिंग कि दो फटके मैं दे पाऊँ। ऐसे भी पेरेंट्स होते हैं। उन्हें एक मौका मिलता है बच्चों के ऊपर टूट पड़ने के लिए, बिकॉज दे हैव टू जस्ट थ्रो देयर एनर्जी समवेयर। डोंट डू दैट। What is the purpose of you disciplining? Your purpose is not to spank him or hit them or make them punish them. Your purpose is to get them to do good behavior or to be disciplined. तो अगर आपने एक रूल सेट किया है, आपका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि ये बस एक बार ये रूल तोड़े और कल मैं उसको करेला का भाजी दे दूंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए इंटेंशन आपका। ये होना चाहिए, आई होप इससे मेरा बच्चा कोशिश करे कि टाइम पे सो जाए। आपके दिल में वो पर्पस होना चाहिए, तब वो रूल जेन्युइन लगेगा। थर्ड, प्रोसेस। देयर इज अ प्रोसेस इन हाउ यू सेट अ रूल। मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ कि रूल सेट करने के लिए काफी पेरेंट्स गलतियां करते हैं और उसी चक्कर में रूल कभी फॉलो नहीं होता है। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट 4C प्रोसेस, हाउ यू सेट अ रूल। प्रोएक्टिवनेस। मेनी पेरेंट्स सेट द रूल आफ्टर द इंसिडेंट हैज हैपेंड। होता है कि बच्चा जैसे उस दिन आपका आपका बेटा अगर चला गया खेलते खेलते और वापस आया नहीं टाइम पर घर पे, उस दिन उसको फटके पड़े। तो उस दिन शायद संदीप ने अपने रूल सेट किया रहेगा, बेटा अगली बार से खेलने जाओ तो तुला 8:30 घर पे पहुंचना ही। लेकिन इससे पहले ही रूल सेट करना चाहिए। प्रोएक्टिवनेस इज when you see this particular conditions can occur in their life, this particular situations may arise। जैसे आपका बच्चा अभी कॉलेज में जा रहा है, तो आपको पता है ये बच्चा अभी कभी ना कभी मूवी देखने जा सकता है या बाहर घूमने जाएगा, या फिर वो हो सकता है कि वो लेट आए रात को। तो पहले से रूल सेट करके रख दो ना। अगर तू मूवी के लिए जाएगा तो हमसे बिना बोले नहीं जा सकता। यू कैन अज्यूम मूवी जाते वक्त तेरे साथ कौन कौन है हमें जानना है, और ऐसा मूवी के लिए जानना है जो आलतू फालतू ना हो। तो सेट सम 2-3 रूल्स, क्लियर कर लो पहले से प्रोएक्टिवली। आपका बेटा जा रहा है अगर ट्यूशन में, तो बोलो आप ट्यूशन में जा रहे हो, ट्यूशन से आते हो ऑटो पकड़ते हो, इधर उधर कोई दुकान में जाके आपको सामान नहीं खरीदा, पॉकेट मनी दिया है, ये वो चीज खरीदने के लिए ही नहीं, मैंने एक्स्ट्रा टिफिन दिया, आप वही खाओगे। सेट द रूल्स पहले से ही, ना कि वो कुछ गलती करे फिर रूल्स मत सेट करो, वो रिएक्टिव होता है। प्रोएक्टिवली सेट करो। So think about proactively what are the situational scenarios which can occur in your child's life and proactively set and set rules. Last, as I said, persistence. एक दिन रूल सेट किया, अगले दिन दूसरा रूल मत सेट करो, है ना? ठीक है, वंस इन अ व्हाइल उसका बर्थडे है तो आप बोल सकते हैं चलो आज के दिन चल तुझे फ्रीडम दे दिया, कुछ खा ले, कोई बात नहीं। बट हमेशा यू कैन नॉट गिव देम, आज मेरा मूड अच्छा है पापा का, खा लो, आज मम्मी का मूड अच्छा है, खा लो, ऐसे नहीं होगा। तो परसिस्टेंट नहीं रहा। सो यू नीड टू मेक श्योर वॉट एवर यू सेट, कुछ भी हो जाए, कैसे भी झंडे गाड़ने हो, लेकिन आप रूल नहीं ब्रेक करोगे। और अगर ब्रेक करोगे वंस इन अ वाइल, तो दिल में मन में सोच के मत ब्रेक करना। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से योर सन ब्रॉट सम ग्रेट मार्क्स, 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स। तो खुशी के मारे आप उसको कल बोल रहे बेटा तू कैंटीन से खा लेकर, ये नहीं। आप ये दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? आपके मन में वो खुशी है, तो उस खुशी को बता के रैशनल के साथ दो क्या आपने पे। आपके मन में रीजन है लेकिन आपने उसको बताया, आप वो कैसे अज्यूम करेगा कि मम्मी क्यों खुश है? तो आप बताओ, कल आपने 100 आउट ऑफ 100 किया मैथ्स में और हम सब आपके लिए प्राउड है। आज उसके वजह से आपके लिए एक अप्रिसिएशन, जाके कैंटीन से खा सकते, वो बोल के दो। आज इसलिए दे रहे, हर बार ये अलाउ नहीं। तो आपने रीजन दे दिया, रैशनल दे दिया, तो बच्चा समझ गया मेरे पापा मम्मी जो रूल्स बनाते हैं वो रूल्स कट्टर के कट्टर वहां खड़े हैं, क्योंकि कुछ स्पेशल हुआ है लाइफ में, इसके लिए उन्होंने उनको बेंड किया रूल्स एक दिन के लिए। ठीक है, तो आप फ्लेक्सिबल नहीं हो रूल्स, ये मैसेज आप आपके बच्चे को दे रहे। क्लियर? तो पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्पस, प्रोसेस फॉलो करो जो मैं आपको डिटेल में भी समझाऊंगी।
प्रोएक्टिवली रूल सेट करो, कुछ होने के बाद मत रूल सेट करो, और कंसिस्टेंट और पर्सिस्टेंट रहो आपके रूल्स के। दीज आर द 5 P's or principles of discipline. Clear with this? Any doubt on this one? Okay. Now let's go and talk about, हाँ बोलो विकास। I have a quick question. The principles are good and fine. I understand them. However, because of our routine and life, the work culture that we live in, at times our own persistence is not in place. And over the last 1 year, I have seen it that for good 6 months, I was persistent in sleeping on time. And even if I was not sleeping on time, I was at least getting up on time, right? Sometimes you have work till late. Now, until unless you really turn off the light and you go to the bed, and the child or my son would come actually see that, okay, everyone has slept. Till then, he would always try and find a ways of having a conversation. But a lot of time you can't have it because you have your call till say 11:30. And sometime it has happened and I've seen him awake even till 12:30. I would complete my call by 12:30 and I'll go into his room and he's awake. He's not on mobile, but he's awake. I just wanted to talk for 5 minutes. Now, this is something which, how to handle such a situation. I just want to talk for 5 minutes. You were busy from 10:30 to 12:30 and he was just awake for some reason or not, some weird reason. Then you only feel more frustrated and your patience goes for a toss that, what would you find? मतलब करो अब क्या बात करनी है? नहीं अब बात नहीं करनी है. So that goes into that loop, and this is the real situation that I'm telling. The moment you say, okay, बोलो क्या बात करनी है? अब रात 12:30 बजे कौन सी बात करनी है? And you देख नहीं अब बात नहीं करनी है. अब फिर क्यों जाके बैठे जब बात नहीं करनी है? नहीं अब जाओ. So वो सारा हिसाब किताब बिगड़ जाता है. पहली बार मुझे बता विकास, आपको क्या लगता है, ये सार्थक जेन्युइनली उसने किया या फिर वो थोड़ा सा गेम खेले, मैनिपुलेट Probably कर रहा है? गेम ही खेल रहा है. वो कुछ कुछ तो कर रहा होगा in the back end, and ये he बताओ knows क्योंकि मेरा आप। कैलेंडर लेते रहते हैं लोग. आपकी हाँ, कॉल कितने बजे तक है? करेक्ट। तो अब ये मैनिपुलेट कर रहा है, तो आपको क्या लगता है कुछ रूल आप सेट कर सकते हो इसके लिए? अगर उसको 5 मिनट बात करनी है तो कैसे इसको ऑर्गेनाइज करें? एनी थॉट? Either what we have already told is that whatever conversation have to happen have to complete by 9:30, because suppose that your mom has to go to sleep and I have to sit down and do my work, but that just doesn't happen. तो आपको यही बोलना पड़ेगा, कुछ भी ऐसा चीज तो है नहीं जो रात के 10-11 बजे उसको याद है कि 5 मिनट बात करनी है। जो भी है उसको दिन में याद तो होगा, है ना? तो वो अगर ऐसा कुछ चीज है तो उसको बोलो कि हम यहाँ पर 9-9:30 एक सेट टाइम सेट करो। जैसे हमारे यहाँ पर एक सेट टाइम है 8:30 to 9:30। ये टाइम फैमिली टाइम है। 8:30 से 9 हम प्रेयर बोलते हैं, 9 to 9:30 डिनर का टाइम। दुनिया के किसी भी कॉर्नर में हम ट्राई करते हैं, अनलेस एज एन इमरजेंसी सिचुएशन इन माई। सो व्हाट आई डू इन माई ऑफिस में, लोगों को पता है मेरा कैलेंडर 8:30 to 9:30 ब्लॉक्ड है। आई विल नॉट लेट एनी मीटिंग, आई विल अटेंड एनी मीटिंग आफ्टर 9:30 PM when my children are all settled. But 8:30 9:30 मेरा प्राइम फैमिली टाइम है। इतना तो हम, आई थिंक एज अ VP यू विल हैव द फ्रीडम टू सेट दैट। सार्थक को बोले आपको जो भी बात करना है बच्चों, डाडा एंड मम्मा इज देयर अवेलेबल इन टच। उसके बाद आपको कुछ भी याद है, इट हैज टू वेट टिल टुमारो। इट हैज टू वेट टिल टुमारो बिकॉज योर डैड एंड मॉम आर वर्किंग, वी आर ऑल बिजी। ऐसा नहीं कि वे फ्रीली अवेलेबल, बट एट द सेम टाइम अगर आपको लगा बहुत अर्जेंट है, you can always talk to me in the morning, or you can send me a WhatsApp message if he has a mobile, or put small post-it and leave it on my desk. I will ensure when I come back next day from office, I'll talk to you. That's perfectly okay. एक रूल सेट कर दो ना, फिर उसको बहाना नहीं मिलेगा कि मैं 12:30 तक आपके में जागा हुआ। एक बार उसने कर दिया, और दूसरे विकास अगर उसने बोला ना कि 12:30 में जागा हुआ था, डैड आपसे बात करना था, और अब मेरा मूड नहीं है, अपसेट मत होना। आई यू नो वेरी वेल इन योर बैक ऑफ माइंड ये खेल रहा है, फिर भी अपसेट मत होना। रिएक्ट मत करना, सिर्फ रिस्पॉन्ड करके बना, अरे कोई बात नहीं सार्थक, मैं समझ सकता हूँ तुझे मुझसे बात करनी थी और मूड नहीं है, कोई बात नहीं अभी तो सो जा, लेकिन अगली बार से बेटा तू स्लीप एट 10:30, इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुझे पूरे 8 घंटे की नींद मिले, है ना, ताकि तू फ्रेश रहे। तेरे भलाई के लिए मैं बोल रहा हूँ, मेरे लिए नहीं बेटा। तो काफी बार बच्चों को क्या लगता है पापा मम्मी इसलिए सुला रहे ताकि हम मोबाइल पे नहीं खेल पाए, हम फ्रेंड्स के साथ चैट ना कर पाए, बट वो मेन इंटेंशन तो कुछ और है और अब बोलते कुछ और है। आज तक बच्चों माँ बाप ये नहीं बोलते कि रीजन क्या है, वो तो ये बोलते तू ना फ्रेंड्स के साथ बैठा होगा चिट चैट करे जाके सो जा।
तो बच्चों के अलग, अच्छा ये रीजन है जिसकी वजह से हमें सुधारेगा, लेकिन रीजन वो नहीं, रीजन क्या है ऑनेस्टली हम सबके दिमाग में, बेटा तू सो जाएगा तो तुझे 8 घंटे का स्लीप मिलेगा ताकि तू फ्रेश रहे, वरना होल डे यू विल बी टायर्ड, व्हेन योर फ्रेंड्स विल बी अलर्ट एंड एनर्जेटिक यू विल बी ड्रेन बेटा, दैट इज व्हाई आई वांट यू टू गो टू स्लीप। अगले बार मेरी वजह से तू लेट मत सोना, वी विल फिगर आउट अ टाइम हाउ वी कैन टॉक, 8:30 to 9 बटाडा अवेलेबल, विल टॉक। उसे उसको एकदम उसको गिल्टी फील होगा, यार एक तो मेरे पापा ने मुझसे भरोसा कर दिया और मेरे लिए रूल सेट किया, मेरे लिए वरीड भी है, मेरे पापा कितने अच्छे हैं, मतलब मैं उनको फंसाने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो तो मेरे ऊपर कितना प्यार निछावर कर, इससे कनेक्शन बिल्ड होता है। यू डोंट हैव टू ऑलवेज शो दैट वी आर स्मार्टर देन देम, वी समटाइम्स हैव टू लेट गो, कन्फ्रंट करना हमेशा जरूरी नहीं है बच्चों के साथ, बट वी हैव टू हेल्प देम फाइंड अ वे के वो खुद मजबूर हो जा रहे हैं, यार अगली बार मैं पापा के साथ मैनिपुलेट ऐसे कभी नहीं करूँ, दैट इज द वे यू हैव टू क्रिएट अ बॉन्ड। ओके, सो दिस इज वन सिचुएशन, बट yeah, there could be many and they will try to play games, it is their age to play games। and एक चीज है, काफी पेरेंट्स मुझे बोलते पता है विकास के मेरा बच्चा ना स्मार्ट होना चाहिए या चैप्टर होना चाहिए, दुनिया को डील करने को आना चाहिए, तो पहले तो वो सारा एक्सरसाइज एक्सपेरिमेंट अपने पेरेंट्स पे करेंगे ना। if we are expecting our children to be smart, तो वो स्मार्ट गिरी पहले हम पे चाहिए। तो समटाइम्स व्हेन दे ट्राई टू फूल यू जस्ट थिंक कि चलो अच्छा है यार, दो दो कदम आगे तो है मेरे से, चलो अच्छा है मेरा बेटा, बट उसको कन्फ्रंट मत करो, वो हैंडल करके मैनिपुलेट कर दो ताकि वो अगली बार आपके साथ वो स्मार्ट गिरी ना दिखे, दुनिया में किसी को दिखाए तो दिखाए। दैट इज हाउ वी नीड टू बी शेयर। आई होप विकास इट हेल्प यू। ठीक है, Yeah. आगे मूव करते हैं। So now we look at the 4C process. Now with the 4C process, this is very important, very, very important. Focus carefully here. Many rules which we set in their life, they don't abide by it. And it doesn't work. आप लोग कितने भी रूल्स करो सेट नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो रूल सेट करने के 4 प्रोसेस हैं, और वो 4C प्रोसेस क्या मैं आपको दिखा रहा हूँ, एंड दिस इज गोल्डन नगेट्स, बिकॉज व्हेन आई लर्नड इट आई रियली फेल्ट वाओ यार, ये चीज तो मैंने भी नहीं सीखा था, मैं भी गलती कर रही थी। फर्स्ट रूल, creating a rule collaboratively. Now, if let's say it's a simple rule like I did for my daughter is, beta, if you finish your college and if you have any that your friends are moving around to go around anywhere, you have to call me and tell me where you're going. And if you're going out somewhere, I need to know your location. So make sure your live location is on. Even if your live location is for next 6 hours, it's okay, but I need to know if you're away from college. Second, when you're coming back, you have to ensure you have to be back before 8:30 p.m., not later than that. So these are the rules we have set. Now, when I set these rules, there was obviously some type of negotiation with. But Mama, why should I tell you every time I go to a vada pav dukan or if I go to that shop to buy something with my friends? Don't I have so much freedom in life? Those children don't say. So now there is going to be negotiation, but it is important that you discuss with them rather than cutting them down. I can say, but Angela, mere saath bahas mat karo. What mama is saying is final. Okay? If you do that, the rule will not work. You will have to explain the rationale because they are teenagers and teenagers have adult mindset. तो आपको explain करना पड़ेगा. You know why am I doing this? Genuinely, why am I doing this? What do you think, Priya? Why I am setting these rules for them? Why I am setting the rule for her that you have to tell me before you leave the college premise? Any thoughts? For the For safety. their safety. For for their safety, exactly for their safety. But what they think is, मम्मा हमारे ऊपर हेलीकॉप्टर पैरेंटिंग कर रही है, हमारे पर नजर रख रही है, हम क्या कर रहे हैं, मुझ पर भरोसा नहीं है मम्मा को। तो ये एक थॉट उनका है और उसकी वजह से वो हमारे रूल्स में डाउट करते हैं। अगर हम उनको रैशनल बता के दें कि बेटा आई एम वरीड बिकॉज ऑफ योर सेफ्टी, देयर आर वेरी इंसिडेंट्स आई एम लिसनिंग हियर एंड देयर, आई जस्ट वांट टू इंश्योर दैट वेयर एवर यू आर गोइंग वी आर अवेयर। अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया एटलीस्ट मुझे पता तो होना चाहिए मेरी बेटी कहाँ कौन से कॉर्नर में खड़ी थी, कौन से बस स्टॉप पे थी या कौन सी दुकान के वहां गई थी। If I don't even know that, how will I try to find out if something is wrong? So then when you tell that thing, no, it is clear. It is clear and they know the intention of my mama is correct. So they will not send you the location or they will not tell you, inform you just because they're irritated कि mama ने rule set किया तो बताना है, because they know now the intention is my mama wants her safety. I have to send mama this because so that she knows where am I. So the rational is very important. और दूसरा point होगा, then they will come and say, मम्मा 8:30 PM तक वापस आना घर पे, थोड़ा जल्दी नहीं है? मेरे एज के बच्चे सब 9 o'clock 10 o'clock तक आ सकते, क्या मुझे इतना भी फ्रीडम नहीं है? अगेन देयर यू हैव टू सेट अ रैशनल।
Where are your other friends staying? Probably they are staying in the proper city near close to the railway station. You have to walk from the metro for 20 minutes in that Sumsan road, जो safe नहीं है बेटा. So you cannot afford to walk from that night 9:30. So give the right rationale why you're setting this rule. Give the right rationale why you're putting the rule around 8:30 or 10 o'clock or whatever time. Once you do that, make sure they agree. जब तक वो collaboratively agree नहीं करते, रूल नहीं बना सकते आप लोग. ये बिल्कुल मत करना अगर बच्चा बोले नहीं मुझे 9 PM चाहिए, 9 PM चाहिए और नहीं 8:30 चाहिए, खत्म. वो रूल कभी नहीं बनेगा और एग्जीक्यूट नहीं होगा. So you both have to sit together, come up with an agreement like matured people, then the rule is set collaboratively. Second C, communicating the rationale, as I said, is very important so that they know this rule is set for their benefit and safety or good intention. Third, consequence needs to be agreed upon. As I said earlier, you काफी बार यही होता है गड़बड़. I'm sure you all have done this. Rule set किया होगा. अच्छा, सार्थक, you have to make sure कि आप ये होमवर्क ना इस वक्त तक खत्म करोगे तभी डैड विल बी हैप्पी. इतना करके बोल के चले जाते हो, बट आप उसका कॉन्सिक्वेंस सेट नहीं करते. अगर आपने ये होमवर्क, चलो तो बच्चा क्या बोलता है, हाँ हाँ डैड अग्रीड, आई विल डू द होमवर्क 6:30. तो आपको क्या लगता है, अरे मेरा बेटा तो अच्छा मान गया, मैं खत्म. नहीं, स्टोरी खत्म वहां नहीं हो. अगर आपके बेटे ने बोला हाँ हाँ पापा मैं तो 6:30 तक अब सारा होमवर्क खत्म करूंगा और सारी पढ़ाई खत्म करूंगा, तो फिर आप विकास पूछोगे साथ तक, लेकिन इन केस किसी दिन आप नहीं खत्म कर पाए तो क्या. पूछो पूछो उससे. तो नहीं नहीं पापा हो जाएगा 6:30, नहीं वो ठीक है मुझे पूरा भरोसा तो करेगा, इन केस किसी दिन नहीं कर पाए तो क्या. तो हम एक चीज तो करना पड़ेगा, और वो क्या चीज है, तो फाइंड आउट सम कॉन्सिक्वेंस विच यू वांट टू पुल आउट फ्रॉम. उस दिन आपको फिर रात को वीडियो गेम खेलने या टीवी देखने नहीं मिलेगा, कुछ भी. So you are actually moving out as favorable condition, right? And then you need to close the consequence there. तो रूल सेट हो गया कि ये है रूल और ये है इसका कॉन्सिक्वेंस, और इसके साथ हम रूल को क्लोज करते हैं. अब रूल को क्लोज करने के बाद कहानी खत्म हुई? नहीं खत्म हुई. एक और लास्ट स्टेप बचा है, और वो है कंटिन्यूस मॉनिटरिंग. यू हैव टू मॉनिटर. अब हो सकता है सार्थक रोज होमवर्क 6:30 को खत्म कर. अगर वो खत्म कर रहा है विकास, तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू अप्रिसिएट. काफी बार बच्चे रूल्स फॉलो करते हैं, हमें लगता है हमारे बच्चा अच्छा है, बट यू डोंट टेक अ वर्ड टू अप्रिसिएट देम. यू हैव टू अप्रिसिएट देम एंड से पैट ऑन बैक, सार्थक वेरी गुड, यू आर डूइंग इट ऑन 6:30 PM एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट. तो वंस इन अ व्हाइल जाके अप्रिसिएट करो, क्योंकि उस बच्चे को 6:30 PM अपना होमवर्क खत्म करने के लिए बहुत एफर्ट मारना होगा. वो आपको दिख नहीं रहा है, क्योंकि वो 6:30 PM खत्म करो तो आपको लग रहा है अरे हो रहा है, लेकिन वो कितना एफर्ट मार रहा है वो आप देख नहीं रहे हो. जब आप अप्रिसिएट करते हो तो वो उसको मोटिवेशन मिलता है हर दिन 6:30 होमवर्क खत्म करने के लिए. और किसी दिन अगर उसने नहीं किया तो आपको ये बोलना चाहिए, पता सार्थक पिछले 2 महीने से तू जब रोज खत्म करता था ना, आई वाज सो प्राउड ऑफ यू. आज तू नहीं किया, गलत किया, चलो कॉन्सिक्वेंस तो मिलेगा, लेकिन डैडा का दिल भी दुखा, तो थोड़ा सा वो एक वर्ड भी डाल दो. तब देखना किस तरह वो अपने आप को चैनलाइज करके ही विल एंश्योर दैट ही मेक्स यू हैप्पी एंड ही फील्स योर रूल. क्लियर? सिंपल. बट ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है. देखने में लगता होगा कि यार ये क्या है, कोई बड़ी चीज तो वो नहीं है, लेकिन ये फॉलो करके देखो तो चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे. हम ये चीज बराबर स्टेप वाइज फॉलो नहीं करते. काफी पेरेंट्स रूल क्रिएट करते हैं, कम्युनिकेट भी करते हैं, लेकिन रैशनल कम्युनिकेट नहीं करते. कुछ लोग कम्युनिकेट करते हैं रैशनल और रूल क्रिएट करते हैं, लेकिन कॉन्सिक्वेंस बताना भूल जाते हैं. कुछ लोग ये सब रूल बना के कॉन्सिक्वेंस बना के भूल जाते हैं. बच्चे अच्छी तरह से कर रहे हो तो उसको अप्रिशिएट करना भी सीख. अगर आप टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेते तो एक दिन वो तोड़ के दिखाएगा रूल, है ना, then you will get upset. Clear? So this is one important thing I want to teach you all technique. The second technique which I want to teach you is now that you understood how to set rules. So can you practice this in this week? कोशिश करो, है ना, नेक्स्ट वीक में पूरा एक हफ्ता पड़ा है, कोई भी एक चीज उठाओ ये वीकेंड पे जो आपको और आपके स्पाउस को लग रहा है कि यार ये चीज से हमें अपने बच्चों के लिए रूल सेट करना चाहिए, और उसको ये रूल मेथड अप्लाई करके देखते and just see how it is working, because only if you practice it you will see that. ठीक है? Now I'm going to teach you another more technique before we close today for positive reinforcement. So एक हो गया डिसिप्लिन रूल सेट करना, ये प्रोएक्टिव हुआ. अब एक दूसरा है कुछ बिहेवियर्स है बच्चों के जो गलत है, and you want to discourage that bad behavior and encourage a good behavior. कुछ भी हो सकता है, सुबह सुबह ब्रश करते वक्त
वो टवल इधर फेंक रहा है, या सुबह उठ के जाता है बेडशीट अपना फोल्ड नहीं करता है, कुछ भी छोटे छोटे हरकतें which is not very very criminally bad to set a rule around, but those are some good behaviors which you want them to be encouraged about. All right, so how do we do that? This is done by a technique called as award and disregard. Okay, award and disregard tells a technique that we should not use a carrot and stick method. That is the old method, carrot and stick वाला, है ना, कि बेटा तुमने ये करोगे तुम्हें चॉकलेट मिलेगा, अच्छा बेटा ये करोगे अच्छा भी है तुम्हें ये मिलेगा, गलत करोगे ये लो डंडा। कैरेट एंड स्टिक मेथड उसको बोलते हैं जो नहीं चलेगा आज के जमाने में। So what is the method we should use? This award and disregard. This rule says that encourage the good behavior and ignore the bad behavior. How do you ignore the bad behavior? I'll teach you. So first of all, whenever a child is doing anything which is good behavior, and it could be something even which you have taught or they are doing by default. For example, काफी बार बच्चे बहुत अच्छी हरकतें करते हैं जो आपकी नजर में है, कुछ कुछ करते हैं खाना पूरा प्लेट साफ करके चकाचक साफ करते हैं. This is a good habit, but have you ever noticed your child doing that and appreciated your child? आपका बच्चा स्कूल से आने के बाद उसके जूते सही जगह पे रखता है या बैग सही जगह पे रखता है, आपको लगता है ये बाय डिफॉल्ट है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, बट वंस इन अ वाइल appreciate that behavior. This is called appreciation and praise method, because when you appreciate and praise them, they feel very nice. Now, when you appreciate and praise them, don't appreciate and praise them just for the sake of it, but recognize their efforts. For example, Priya, your son is putting the shoes after coming from school into the nice place. So you should just say, you know what, I really love the way you take efforts to put the shoes in your place. इतना हेल्प हो रहा है, इट्स गुड, अपना घर कितना साफ दिख रहा है आपकी वजह से. वंस इन अ वाइल उसको बोला करो. कुछ भी छोटे छोटे चीजें होंगे, वो नहाने के बाद टवल जाके बाहर सुखाने के लिए डालता होगा, जरूरी नहीं हर बच्चे करते हैं. हम अपने बच्चों को कभी कभी टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते, अच्छी बिहेवियर भी उनके हम नहीं देते. तो अभी से जब यू सी अ गुड बिहेवियर, appreciate and recognize their efforts, because when you do this consistently, you know what will happen, उनके दिमाग में एक पर्टिकुलर का एक टेक्निक घुसना शुरू होता है, मुझे मम्मा डैडा का वो अच्छा अप्रिसिएशन सुनने में मजा आता है, so they get used to that thing. Now why are you doing this thing? Because you're going to use it in the right place, and I'll tell you where to use the right place. So now this is recognize their effort. Third, you will say gratitude. काफी बच्चे घर का कुछ भी चीज भी करते हैं, ओके, जैसे मेरे बच्चे हैं, जब खाना खा के उठ जाते हैं तो वो लोग उनका प्लेट भी उठाते हैं और करी वाला बाउल्स उठा के किचन में लाके देते हैं. मैंने कभी उनसे पूछा नहीं, बट इफ दे सी दैट मम्मा नीड्स हेल्प, दे डू इट, एंड देन इमीडिएटली से बेटा थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था बट यू आर डूइंग इट, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट फॉर बेटा, इट रियली मम्मा को और टाइम बच रहा है. Fourth, if they have done something really great, for example, once the guest had come home and the children came in, they sat together, they behaved very well, they talked very sweetly to the guest, they were so polite. और वो गेस्ट जाने वक्त बाद ना हमें लग रहा था वाओ यार हमारे बच्चों ने इतने अच्छी तरह से बिहेव किया. एंड दिस वाज मेनी इयर्स बैक व्हेन दे वर स्मॉल. Normally the children of that age, they are fiddling, they are moving around, not sitting, but they behave so well. चाहते वक्त उसे अप्रिशिएट करके चाहिए, आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं. Immediately after the guest left, my husband said, let's celebrate. I'm so happy and proud of you. He called for an ice cream and we had ice cream and all. And, you know, we made them feel special. So when you are doing this, what happens? Every good behavior is connected with some good events. Now, उनके दिमाग में वो good events का पूरा अच्छा feeling आता है. वो बच्चा अगर कोई गलत behavior कर रहा है तो आप क्या करो? Will you punish them? No. What you do? The same rule which we applied in the past. We will deprive them of the appreciation. समझ में आ रही है? हम उनको जो खुशी दे रहे थे, हमने वो खुशी बंद कर दी. अब ये स्पाउस के केस में भी वर्क होता है बाय द वे. फॉर एग्जांपल, लेट्स से every day your husband comes, he comes in a nice mood and he says, हाय प्रिया क्या हाल है, कैसा है तू, ऐसे करके थोड़ा हग वग करके फिर वो बैठा. तो उस दिन संदीप के लिए सब स्पेशल करी बन रहा है, रोज अप्रिसिएशन. ओके, एक दिन संदीप ने आया और अरे हट मला कॉल घ्यायचे, जल्दी जाके कॉल पे घुस गया, कॉल पे बैठ गया, ध्यान नहीं दिया प्रिया को. फिर प्रिया ने अच्छा खासा करेला वाला सब्जी, नमक बिना सब्जी लाके टेबल पर रखा. प्रिया ने कुछ बोला नहीं, प्रिया ने स्टिक नहीं यूज किया, बट प्रिया ने कैरेट हटा दिया.
वो खा रहे हो यार, आज तो कुछ गड़बड़ है। तो प्रिया का चेहरा देखे और प्रिया हाँ लो ना, खाना लो क्या, थोड़ा लीजिए। तो वो समझ गया, अरे आज तो गड़बड़ हो गई मेरे से, है ना। तो झगड़ा नहीं हुआ। विल ही गेट एंग्री विद प्रिया? नो, ही विल नॉट गेट एंग्री विद प्रिया, बट ही विल फील रियलाइज, अरे यार गड़बड़ हो गई। लेकिन अगर उल्टा होता, प्रिया ने सिक यूज करता, तो प्रिया आके खाना खाने में, तुमने मुझे बात नहीं किया, ये कोई तरीका होता है, तुम वैसे भी मुझे भूल जाते हो, ऑफिस जाने का आपको टाइम नहीं, ये वो कैसे नैगिंग किया, क्या फायदा हुआ? वो बोलेगा कल तो आना ही नहीं यार घर पे, छोड़ो। बट ये बिहेवियर जब प्रिया करेगी, तो उसके रियलाइज होगा, यार गड़बड़ हो गया, कल से आके हक करते हैं। So you are actually not punishing your child, but you're not giving attention. You're not appreciating. You're telling them you're feeling why you haven't felt like appreciation. तो प्रिया क्या करेगी? ये सब बनाएगी। आज ना मेरे को स्वीट बनाने का मन, डेजर्ट बनाने का मन नहीं किया संदीप। पता नहीं आज तूने आके इतना प्यार से हग नहीं किया ना, तो मुझे थोड़ा बुरा लग रहा था। मन नहीं किया ऐसे आज स्वीट बनाने का। तो प्रिया ने रैशनल भी बता दिया, लेकिन उसको झगड़ा भी नहीं किया। तो संदीप बोला, अरे यार स्वीट्स का तो बात लग गया, अब मुझे चाहिए, कल से तो स्वीट बनना पड़ेगा। तो संदीप सुन तो नहीं रहा है प्रिया पीछे से। तो बेसिकली ये टेक्निक यू हैव टू अप्लाई ऑन योर चिल्ड्रन। तो फॉर एग्जाम्पल, क्या हुआ, नहीं तो सुन रही है क्या? तो तो बेसिकली हमें करना क्या है? The way Priya responded, na na na, nahi. तो, तो बेसिकली व्हाट यू नीड टू डू द सेम थिंग इज, अभी ये स्टेप्स खत्म नहीं हुए, मैं 3 स्टेप्स बता रही हूँ। फर्स्ट स्टेप क्या है कि अगर आपके बेटे ने गलत बिहेवियर है, किसी दिन आपके बेटे ने आके जूते रखे नहीं, तो आप रिएक्ट नहीं करोगे प्रिया। यू विल नॉट शाउट एट हिम, यू विल जस्ट लुक एट हिम, नॉट गिव हिम अ हग और लव एंड किस। यू विल पिक हिज शूज, पुट इट इन द कबर्ड साइलेंटली। अब उसको लगे यार रोज मम्मा कुछ ना कुछ अप्रिशिएट कर, मम्मा साइलेंट, ओके। देन उसके बाद वो आके चाय पीने के लिए बैठेगा। पता है रोज तुझे अप्रिशिएट करने का मन करता है, लेकिन आज मन नहीं किया। आज तूने जूते नहीं रखे बेटा, रख लेता तो अच्छा था। ठीक है कोई बात। आपने रीजन बता दिया तो बच्चे को समझ में भी आया। आपने कुछ मारा उसको, डांटा उसको नहीं, तो अपसेट नहीं होगा, सो समझ में आया। थर्ड, यू हैव टू वेट फॉर द राइट बिहेवियर और एक्शन टू हैपन एंड गिव अ लाउड एंड बिग लॉस। मतलब फिर अगले दिन वो जब जूता रखेगा तो आपको फिर से जाके हाँ करे, वेरी गुड बेटा, सो हैप्पी। तो जब आप ये चीज करोगे ना, आप एनकरेज करें, और ये कोई भी उम्र के बच्चों के लिए लागू है, कोई भी उम्र के बच्चों के। छोटे सा बच्चा भी समझता है कि ये राइट बिहेवियर है, ये बैड बिहेवियर। ठीक है, आपको मारना है जरूरत नहीं है, आपको उसका हैप्पीनेस को कम करना है, अपने आप को समझ जाएगा कि ये बिहेवियर मेरे लिए सही। क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज अवॉइड एंड डिसरिगार्ड। सिंपल, इजी, समथिंग डिफरेंट यू लर्न टुडे, राइट? ओके, तो ट्राई दिस। मैं सिखा रही हूँ हवा के लिए नहीं, प्लीज प्रैक्टिस कीजिए। ट्राई दिस एंड व्हेन यू सी द मैजिक हैपनिंग, देन यू विल से वाह, रीजा ने क्या गोल्डन मंत्र सिखाया हमारे लिए, ये तो काम कर गया करके। ओके, द की टू गेटिंग ग्रेट रिजल्ट is to pay more attention to what's going right rather than paying attention what's going wrong. We have to reverse our parenting style. और ये काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि सालों से हमने सीखा एक ही चीज है, जब बच्चा सही करे तो इग्नोर करो, वो तो चल रहा है। तो गलत कैसे कर लिया बेटा, रुक, ऐसे कैसे क्या, अटेंशन वहीं पर हमारा जाता है। लेकिन हमें अभी रिवर्स करना है। जब बच्चा सही करे, अरे यार तूने सही किया, अरे तू तो अच्छा कर रहा है, जैसे उसने गलत किया तो इग्नोर, जस्ट इग्नोर एंड ट्राई दिस मेथड वी वर्क। ऑलराइट, तो रिस्पॉन्ड टू वांटेड बिहेवियर and don't respond much to unwanted one. Automatically, they will start, they want you to respond. They always want you to respond. So they will be encouraged to do good behavior. All right. So this is exactly what I had for you all today. This is called as positive reinforcement. मुझे बहुत सारे सिखाने के बदले मैंने सोचा मैं 2 की स्ट्रैटेजीज आपके हाथ में दे देती हूँ। ये 2 की स्ट्रैटेजी से आप कोई भी प्रॉब्लम डिसिप्लिन का सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो झूठ बोलना हो, चाहे वो खाना नहीं खाना हो, रात को सोना नहीं, हर बिहेवियर का सोल्यूशन ये 2 टेक्निक्स में। एक रूल सेट करो प्रोएक्टिवली, दूसरा एनकरेज गुड बिहेवियर। क्लियर? ठीक है, so I'm making Right. parenting simpler for you rather than giving 100 techniques. this ये 2 चीज इजी आपको याद। बोलो विकास।
थक गए And अच्छा। this would make the parenting easy, but parenting is not easy at all. Yeah. And that's why parenting is not easy because हम लोग ना काफी एक स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग में से गुजर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं स्टार्ट से, तो अभी चेंज करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है आप लोग के। अगर आपने स्टार्टिंग में जब बच्चा टॉडलर था तभी ये सब पढ़ लिया तो आप चेंज कर लेते, तो आप ये ब्रीथ करते। अब वाई मैं ये बोल रही हूँ क्योंकि मैंने ये चीज जब सीखा 2-3 साल पहले तो मुझे लगा यार ये क्या बकवास है, ऐसे थोड़ी होता है। लेकिन मैंने जब ये करना शुरू किया ना, फिर मुझे लगा यार ये वर्क होता है। फिर धीरे धीरे इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर हैबिट एंड देन यू नेचुरली बिकम लाइक। देखो विकास, अभी आपके पेरेंट्स ने ये स्टाइल नहीं किया जिसकी वजह से आप भी उनका स्टाइल कर रहे हो। अगर विकास ने आज स्टाइल चेंज किया तो आपके बच्चे तो सही पेरेंटिंग स्टार्ट से करेंगे। इनफैक्ट उन्होंने किया, दैट इज व्हाट आई रिकॉल नाउ, दैट नंबर लेके आओगे तो इन दोज डेज इट यूज्ड टू बी देयर, नेरोलास पे आइसक्रीम ला के लेके आएंगे। It is not a normal wala gola stick that you will get. You will go to Nerulas, and going to Nerulas in our age, 30 years back, used to be a big thing. That it used to be a celebration. अरे वहां जाएंगे, होटल में जाके खाना खाएंगे। तो they always used to do this. जल्दी से होमवर्क खत्म कर लो, फिर मार्केट चलते हैं, हाँ, कुछ दिला के लेके आएंगे। यार But from that time to now, it has become like Amazon. They don't care. They can just order it themselves. लेकिन एक चीज याद रखो, अगर आपने होमवर्क टाइम पे नहीं किया तो पापा कैसे रिएक्ट करते थे? वो रिएक्शन कुछ भी नहीं था थोड़ा उनका, कहते कोई बात नहीं, मेरे से तो कुछ भी नहीं कहते थे वो। इन माय टाइम देख, कोई बात नहीं, हमने तो इतना भी नहीं किया था, तुमने तो फिर भी बात कर लिया। सो दैट मतलब वाज हिज रिएक्शन। आपके पापा ने मारा नहीं, डांटा नहीं तो ठीक है, मेरे पापा ने भी कभी आज तक मेरे पर हाथ नहीं उठाया, कभी नहीं उठाया। मतलब वो एक वर्ड चिल्ला भी लेते ना गलती से ट्रीजा, तो मेरे आंख से गड़गड़ पानी आना शुरू हो जाता। वो काफी दबा लेते थे। मतलब मम्मी फिर भी इधर उधर फटके देते थे। पापा मेरे लिए बहुत खास थे। वो एक बार आवाज उठाते, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वजह से एक बार भी इनको गुस्सा नहीं आना चाहिए। मेरा एक एम्बिशन था लाइफ में कि नहीं, मेरी वजह से मेरे पापा कभी गुस्सा नहीं हो सकते। इतना आई वॉज वेरी पर्टिकुलर इन माई लाइफ। तो इसके लिए कभी मार खाने की जरूरत नहीं पड़ी। मुझे तो भाई को बहुत मिली है। लेकिन हाँ, ये टेक्निक जब मैंने यूज किया ना तो मुझे रियलाइज हुआ हम रिवर्स करने में बहुत तकलीफ होता है। लेकिन जब मैं ये करूंगी, मेरे बच्चे अभी सीखेंगे, जब वो पेरेंटिंग करेंगे उनके लिए पेरेंटिंग बहुत ईजी होगा, क्योंकि उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया है ये पेरेंटिंग। सुन लेगा, मारने तो दूर के बाद। अब अमेरिका में जाके देखो, कोई पेरेंट को हम बोलेंगे दो फटके लगा देते, व्हाट आर यू सेइंग, हाउ कैन यू हिट योर चाइल्ड? दे डोंट हिट द चाइल्ड फ्रॉम लास्ट 1 decade, बट वी आर स्टिल हिटिंग। हमारे यहाँ पर वो लाना अलग, एक एक डेकेड और लगेगा। तो एटलीस्ट I would वो have to drop now, Teresa, because I have to jump. Okay, सो take ऑल द care. See बेस्ट you. एंड Thank you so much. हैप्पी अविका को मेरी तरफ से भी हैप्पी बर्थडे बोल Thank you. देना। बिल्कुल sure. Yeah, wish him also. Absolutely, absolutely. बाय विकास। Bye bye. हाँ जी सर, एक सेकंड। They, I'll just wait to talk to you for some time. हाँ, कैसे चल रहा है? मैं स्टॉप करती हूँ एक मिनट। ओके, सो दिस क्लोजेस आवर मॉड्यूल 5।